Hi, welcome to Learn with Anjali. I'm Anjali Kaur and today I'll be teaching Geography Chapter 1 of Class 10th Resources and Development. So, let's take a look. Welcome back. So, as I was saying that today I'll be talking about Geography Chapter number 1 from Class 10th Resources and Development. In this video, we will cover three small topics. What are resources? Then interdependence between nature, technology and institution, and the third one is resource classification. Okay, we will just do the introductory part here. Gradually we will learn more and more about this chapter. So starting off with, what do you mean by resources? See, resources याद रखने के लिए, resources की definition याद रखने के लिए you need to remember one code which is TEC, TEC, where T stands for technologically accessible. अब रिसोर्सेज वैसे क्या होते हैं, वट एवर इज बींग गिवन टू यू बाय द नेचर. ठीक है, रॉ मटीरियल्स, यू हैव सो मैनी फॉरेस्ट, यू हैव सो मैनी प्रोडक्शन प्लांटेशंस. ठीक है, you have so much from the environment, you get trees, you get wood, you get everything from the environment. But can we use them directly? Yes, sometimes we can use them directly, but in order to use them in a refined form, अच्छे से use करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का requirement है. So what are those? Technology. ठीक है, we should be able to use whatever is being given to us by the nature if we have the technology to assess them. Do we have the technology to use them? Yes. अगर tree है तो tree को काट के we can transform into table or chair, right? We have the technology. Fine. E, economically feasible. Afford कर सकते हैं हम? Do we have enough money? Yes. Machines, we have those machines which we can afford, which can be used to convert the raw material given to us by the nature. अब जैसे गन्ना है, गन्ने से हमें क्या मिलता है? गुड़ है. कन्वर्ट करो इसको. जो शुगर केन है, शुगर केन को कन्वर्ट कर दो इनटू अ रिफाइंड शुगर, राइट? सो इट इज पॉसिबल. या वी हैव द मनी. As of now, we have the money. It is not a costly thing that we cannot convert the given resource raw material in the nature into a better form, into a final form. See, culturally acceptable. क्या हमारा कल्चर एक्सेप्ट करता है? अब कल्चरली एक्सेप्टेबल में क्या आ जाता है? जैसे कि आजकल लोग क्या कहते हैं दैट वी शुड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन. वाई? वी नीड टू सेव द नेचर. वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कंट्री. ठीक है, सो कल्चर कई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता. Nowadays so frequently they are trying to ban so many things. ठीक है, so same is the case. They say कि if you cut one tree then make sure you are growing 100 or more of them, you're planting more of them. Okay, so these things TEC should be a part of your resources meaning. So what am I saying? Resources are those wherein resources are those which are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, and they can help in the want satisfaction of human beings. Then it is considered to be a resource. Otherwise not. Otherwise it is not a resource. अगर हमारे किसी काम का है then it is a resource. Otherwise it's not. Okay. Next topic. Interdependence between NTI, nature, technology और institution के बीच में क्या relationship क्या है? अब नेचर क्या दे रहा है हमें? नेचर हमें रॉ मटेरियल दे रहा है. वो रॉ मटेरियल हमें चाहिए. विदाउट दैट रॉ मटेरियल वी कैन नॉट गेट इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स जो कि हम कंज्यूम कर सकें, जो कि हम यूज़ कर सकें. फाइन. सो नेचर हेल्प्स अस एंड गिव्स अस रॉ मटेरियल. टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है इन कन्वर्टिंग दोज रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स. एज आई मैंशन कि ट्री अगर हमारे पास है, ओके वी कैन यूज, बट इफ यू वांट टू यूज इट इनटू अ बेटर फॉर्म, you want to convert it into a table or a chair, you need technologies, you need the proper finishing, right? So technology helps us in that. I is institution. अब institutions क्या कर रहे हैं? They are doing research, they are continuously doing research. Global warming, ozone layer depletion, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए in order to save the environment, those things are done by the institution, right? So we have nature, technology and institution which are continuously upgrading. ठीक है, वी लर्न फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन. जितनी भी रिसर्च डेवलपमेंट PhD थीसिस वगैरह होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ओके आगे क्या करना चाहिए, राइट?
So in order to make sure that we survive and our nature gets saved or sustainable development ho, we need institutions. They are the one who carry out all the research. They are the one who have carried out and find out the vaccine for COVID-19. जो हम वैक्सीनेशंस लगा रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने मिलके ही इतना कम टाइम में दे आर एबल टू फिगर इट आउट, राइट? सो ऑल दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. दिस वॉज अबाउट द इंटरडिपेंडेंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द थर्ड टॉपिक इज रिसोर्स क्लासिफिकेशन. कैसे याद रखें? डू ईओ, राइट? वेयर डी स्टैंड्स फॉर, अब हम मेजर पहले 4 क्लासिफिकेशन करेंगे कि जो 4 मेन हिस्से हैं, उन 4 मेन डिवीजन के बाद सब डिविजन देखेंगे. सो डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, ई स्टैंड्स फॉर एग्जॉस्टिबिलिटी एंड लास्ट ओ स्टैंड्स फॉर ओनरशिप. नाउ व्हेन आई से डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट क्या बता रही है कि रिसोर्सेज कितने डेवलप हो चुके हैं. इज इट डेवलप्ड? इज इट अ रिजर्व, हमने बचा के रखा है आगे के लिए? इज इट इन स्टॉक, हमारे पास काफ़ी है? इज इट अ पोटेंशियल, मतलब अभी नहीं है बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, वी कैन यूज इट इन द फ्यूचर. ठीक है, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो एज ऑफ नाउ जस्ट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, वेदर इट इज डेवलप्ड और इज इट केप्ट एज अ रिजर्व. स्टॉक में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा है. Potential, it can be used in the future, it has a lot of potential. Origin, origin में आ जाता है कि originate कहाँ से हुआ है, बना कहाँ से रिसोर्स. रिसोर्सेज की origin 2 तरीके के हैं. बा, राइट? BA, बा. B stands for biotic. Biotic is anything which is living, like us, plants, animals. Okay? Abiotic, which is non-living, जो कि raw materials की बात हो रही है. ठीक है, कुछ भी, soil, anything, water. फाइन. सो दीज आर नॉन लिविंग थिंग. रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन लिविंग थिंग में आ जाती है. बट इसको याद करने का तरीका अच्छा है. जहाँ आपके बायोटिक के आगे ए आ जाए, बायोटिक तो मैंने आपको लिविंग बता दिया ना. ए स्टैंड्स फॉर नॉन, सो नॉन लिविंग. ठीक है, नॉन लिविंग तुम्हारा पार्ट हो गया ए बायोटिक का. मीनिंग ही याद हो जाएगा आपको इससे. नॉन लिविंग इज जो जिंदा नहीं है, लिविंग मीन्स जो जिंदा है, राइट? विच इज ब्रीदिंग इन वन वे और दी अदर. नेक्स्ट, एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने की क्षमता, एनीथिंग विच कैन जस्ट फिनिश्ड ऑफ. सो इसमें आ जाता है रिन्यूएबल, जो कि रिन्यू हो सकता है बार बार. सोलर, सनलाइट, राइट? जनरली वाटर को भी कंसिडर किया जाता है रिन्यूएबल में. देन नॉन रिन्यूएबल, जो कि हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, जिसको टाइम लगेगा काफ़ी बनने में, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह. ठीक है, सो यू हैव टू लुक एट द एग्जॉस्टिबिलिटी कि अगर हम इसे यूज करते हैं, डू वी हैव सफिशिएंट? लाइक वाइज विंड एनर्जी रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल, फाइन. नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल, ये कोल्स वगैरह जो हमारे हैं, दीज आर नॉन रिन्यूएबल. इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू जनरेट, राइट? सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इट इज अ सब पार्ट ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है यूसेज. यूज करने से क्या वो खत्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल, या वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस, अनलिमिटेड, खत्म नहीं हो सकते. रिन्यूएबल, रीन्यू, बार बार न्यू बन जाते हैं, रीन्यू. लास्ट आ जाता है ओनरशिप. अब कौन ओनर है उन रिसोर्सेज का? हु इज द ओनर? ठीक है, इज इट द इंडिविजुअल? ठीक है, एक बंदे का घर है, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, इंडिविजुअल रिसोर्स है मेरा. कम्युनिटी, सोसाइटी का पार्क है. कम्युनिटी मतलब सोसाइटी, सोसाइटी का पार्क है, सोसाइटी को बिलोंग करता है. ऑफ कोर्स इधर उधर से भी बंदे आ सकते हैं, इट्स फाइन, बट मेजॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है. कम्युनिटी इज पेइंग, मेंटेनिंग दैट पार्क. नेशनल, नेशन को बिलोंग करता है, इंडिया को बिलोंग करता है, तो इंडियन रिसोर्सेज है. इंटरनेशनल, किसी के उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, इंटरनेशनल है. इफ यू वांट टू यूज, देन यू नीड टू टेक अ रिक्वायर्ड परमिशन एंड देन कैरी आउट द रिसर्च. तो इंटरनेशनल है, सबके हैं, बाहर के हैं, इंटरनेशनल. Fine. So this was all about resources. What do you mean by resources? Technology, economical and culture. You should make sure that these should be able to satisfy your want, then it is a part of resources, or then you can consider it as a resource. Next आ जाता है interdependence between NTI, nature provides us resources, technology transform the resources. Institution क्या करते हैं? Research carry out करते हैं. Then resource classification, 4 major हैं.
DOEO, D डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस के अंदर वेदर पोटेंशियल है, स्टॉक है, रिजर्व है या डेवलप्ड है. O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, बा से याद रखना आपने. B स्टैंड्स फॉर बायोटिक लिविंग, A स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग. देन आपका आ जाता है E फॉर एग्जॉस्टिबिलिटी, यूसेज. यूसेज के बेसिस पे इज इट रिन्यूएबल, रिन्यू हो सकता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या नॉन रिन्यूएबल, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा. देन लास्ट आपका आ जाता है ओनरशिप. कौन है ओनर? मैं हूं, इंडिविजुअल, सोसाइटी है, कम्युनिटी, नेशन है, इंडिया, या इंटरनेशनल है. ओके, so I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching Learn with Anjali. In case you find this video helpful, then please subscribe to my channel. For the time being, bye bye.